इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् मंगलश्लोकः वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयम् प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम् अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुमानन्दरूपिणम्। सोमेन यजेत इत्यस्मिन् वाक्ये मत्वर्थलक्षणां विना वाक्यार्थ प्रतिपादनं संभवति इति कश्चित् मनुते। सः प्रयासं करोति लक्षणां विना वाक्यार्थ निर्णयाय। तत्रापि आदौ सामानाधिकरण्येन वाक्यार्थ प्रतिपादनं करोति। सामानाधिकरण्येन इत्युक्ते समान विभक्ति रूपेण सोमेन यागेन इष्टं भावयेत् इति समान विभक्तिकत्वेन रूपेण अन्वयः सामानाधिकरण्येन अन्वयः एतावता तन्निरूपितम् இல்லையா? சோமேன யாகேன இஷ்டம் பாவயேத் அப்படின்னு சாமானாதிகரண்யத்தோடு அன்வயம் சொல்லணுமே ஆனால் லக்ஷணை இல்லாத சோமேன எஜேத அப்படிங்கிற வாக்கியத்துல லக்ஷணா இல்லாமல் சாமானாதிகரணத்தை அன்வயம் சொல்லும் பொழுது 5 தோஷங்கள் வரும்னு சொன்னான். இப்போ சாமானாதிகரண்யத்துல சொன்னால்தானே இந்த 5 தோஷங்கள் வரும். வையதிகரண்யன சொல்லலாம் அப்படின்னு பிரயாசப்படுறான். இப்ப வையதிகரண்யன அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் தெரிகிறதா? நமக்கு சாமானாதிகரண்யன அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் பண்ணினோம்? சமான விபக்திகத்வேன ரூபேனா இல்லையா? சமான பிரகாரேன கரணத்வேன ரூபேனா இப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணினோம் இல்லையா? இப்போ வையதிகரண்யன அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் வரும்? சாமானிய அதிகரணம் இல்லாம அதான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? விபின்ன விபக்திகத்வேனா முன்னாடி நம்ம சோமேனா யாகேனா அப்படின்னு ரெண்டுத்தையும் திருத்தீயா விபக்தியந்தமா சொல்லி கரணத்வேன உபயோகோ அன்வயான்னு சொன்னோம். சமான விபக்திகத்வேனன்னு சொன்னா சமான பிரகாரேன கரணத்வேன ரூபேன உபயோகோ அன்வயா அப்படின்னு சொன்னோம். இப்போ வையதிகரண்ய ரூபேன பாவனாயாம் உபயோகோ அன்வயா அப்படின்னு பிரயாச பண்றான். எதிச்ச வையதிகரண்ய ரூபேன அன்வயா இந்த வையதிகரண்யேன அன்வயா அப்படிங்கிறது 2 விதமா சொல்ல முடியும். சாமானாதிகரண்யேன அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு பிரகாரத்தான் சொல்ல முடியும். சோமேனா யாகேனா अधुना प्रविष्टः कश्चन वर्तते सः कः इति अहं ज्ञातुम् इच्छामि. சாமானாதிகரண்யன்னு சொன்னா ஒரே மாதிரி விபக்தி தானே, சோமேன யாகேன அப்படின்னு வந்துடும். ஆனா வையதிகரண்யம்னு சொன்னா ரெண்டுத்துக்கும் வெவ்வேறு விதமாக, அதாவது ரெண்டுமே கரணமாக இல்லாத, ஒண்ணு கரணம் ஒன்னு சாத்தியம் இப்படின்னு வச்சிருந்தால் அது வையதிகரண்யன அன்வயா இப்படிதானே சொல்லணும். அது 2 விதமா சொல்லலாம். எப்படி? ஒரு சமயத்தை யாகத்துக்கு கரணத்துவம்,
சோமத்துக்கு சாத்தியத்துவம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்ல சோமத்துக்கு கரணத்துவம், யாகத்துக்கு சாத்தியத்துவம் இப்படின்னு சொல்லலாம். ரெண்டு வகையில எப்படி வேணா சொல்லலாம். அயம் விஷயா சமயக் அவகதः வா? சாமானாதிகரண்யேன இत्युक्ते சமான பிரகாரேன இत्युक्ते சோமஸ்யாபி भावनायां करणत्वेन अन्वयः, यागस्यापि करणत्वेन अन्वयः इति एकेनैव प्रकारेण प्रतिपादयितुं शक्यते. परन्तु वैयधिकरण्येन अन्वयः यदा उच्यते तदानीं द्वेधा वक्तुं शक्यते. कथम्? एकस्मिन् प्रकारे यागः करणत्वेन अन्वयति, साध्यत्वेन सोमः अन्वयति इत्यपि वक्तुं शक्यते. एवमेव कदाचित् सोमस्य करणत्वेन अन्वयः अस्तु, यागस्य साध्यत्वेन अन्वयः अस्तु इत्यपि वक्तुं शक्यते. तर्हि वैयधिकरण्येन अन्वय निरूपण अवसरे द्वेधा वक्तुं शक्यते इति ज्ञायते. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு இல்லையா? இப்போ கடைசியா சொன்ன விஷயம் சாதனாகாங்ஷா உண்டாகுமே. ஆமா, மேற்கொண்டு அதை பத்தி விசாரம் பண்ண போறோம். என்னென்ன தோஷம் வரப்போ இதுவும் எடுத்துக்க போறது இல்லை. இப்படி ஒரு விசாரம் பண்றது எதுக்காக? நம்மளுடைய புத்தி வைஷத்தியத்துக்காக தான். இப்படியும் யோசிக்கலாமே அப்படின்னு. கடைசியில சித்தாந்தம் என்னது? லட்சணாதான் ஒத்துக்க போறான். ஒரு விசாரம் பண்றான். முதல்ல யாகேன சோமம் பாவையே இப்படின்னு அன்வயத்தை சொல்லி பார்க்கலாம். இப்படி சொல்லும் பொழுது நமக்கு மத்வர்த்த லட்சணா தேவை இருக்காது இல்லையா? அதுக்காக பிரயாசப்படுறோம். யதிச்ச வையதிகரண்யேன அன்வயः தத்ர ந தாவத் யாகேன சோமம் இத்யன்வயः. யாகேன சோமம் பாவை சோமேன யஜேத इति वाक्यस्य யாகேன சோமம் பாவயேத் இத்யர்த்தவர்ணனம் கர்த்தும் ந சக்யதே. சோமேன யஜேத அப்படிங்கிற வாக்கியத்துக்கு யாகத்தினால சோமத்தை உண்டு பண்ணணுங்கிற அர்த்தத்தை சொல்ல முடியாது. ஏன் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு கேள்வி வரும் இல்லையா? அதுக்கு பதில் சொல்றா, சோமேன யஜேதா இத்யத்ர பிரத்யயேன ஆர்த்தி பாவனா உச்சதே. தஸ்யாஹ ஆர்த்தி பாவனாயாஹ சாதனாகாங்ஷாயாம் ஆதௌ கஸ்ய அன்வயः பவதி? யாகஸ்ய அன்வயः பவதி. யாகஸ்ய அன்வயः பவதி. குதः? சமான பதஸ்ருத்யா. இல்லையா? ஆர்த்தி பாவனாவினுடைய சாதனா காங்கையில முதல்ல யாகதான் போய் சேரும் சாதனமாக. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த இரண்டத்தையும், அதாவது ஆர்த்தி பாவனாவையும் யாகத்தையும் சொல்லக்கூடிய பதம் ஒன்று. இதுதான் சமான அபிதான ஸ்ருதி. சோம பதத்தை சொல்லக்கூடிய, சோம லதாவை சொல்லக்கூடிய பதம் வேற பதம், சோமேன அப்படின்னு தனி பதம். அப்போ ஆர்த்தி பாவனாவினுடைய சாதனா காங்கையில முதல்ல சாதனமாக யாகா சேர்ந்துடுறது இல்லையா? இப்படி ஆர்த்தி பாவனாவுல சாதனமாக அன்வயிச்ச யாகத்திற்கு இப்போ என்ன சொன்னா, யாகேன சோமம் பாவயேத் அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த இடத்துல நல்லா கவனிச்சா தெரியும், யாகா கரணம், சோமஹா சாத்தியம் இல்லையா? எப்படி தெரிஞ்சது? சோமஹா சாத்தியம் அப்படிங்கிறத சொல்றதுக்கு இங்க ஒரு பிரத்யா இருக்கு. என்ன பிரத்யா இருக்கு? ஒரு விபக்தி இருக்கு. என்ன விபக்தி இருக்கு? திருத்தியா விபக்தி கரணத்துவத்தை சொல்றது. சாத்திய த்விதீயா விபக்தி இருக்கு. சோமம் அப்படிங்கிற இடத்துல த்விதீயா விபக்தி சோமஸ்ய சாத்தியத்துவம் போதயது. சரி, சோமம் பிரதி சாதனம் கிம் பவதி அதுனா யாகேன சோமம் பாவயேத் இப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா இதுல சோமத்துக்கு எது சாதனமாக இருக்குன்னு தெரிகிறது? யாக சாதனமா இருக்கு. யாகா சாதனமா இருக்குன்னு தெரிகிறது. ஆனா வாஸ்தவிகத்துல யாகா கிம் பிரதி சாதனம்?
स्वर्गं प्रति साधनम् इत्युक्ते आर्थीभावनायाः साधनाकाङ्क्षायां यागः अन्वितः समानपदश्रुत्या। तैः समानपदश्रुत्याम् आर्थीभावनायां करणत्वेन अन्वितस्य यागस्य सोमसाधनत्वम् उच्यते चेत् अन्वयः न संभवति। இது புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? ஆர்த்திபாவனாவுல சாதனமாக அன்வயிச்சிருக்கக்கூடியதான யாகத்தை கொண்டு வந்து சோமத்துக்கு சாதனம் அப்படின்னு சொன்னா இது தோஷகாவா இல்லையா? இதுதான் முதல் தோஷா. எப்போ யாகேன சோமம் பாவையேன்னு அர்த்தம் பண்ணால் இப்படி ஒரு தோஷா ஏற்படுறது. நான் இப்ப பங்கியை வாசிக்கிறேன். ந தாவத் யாகேன சோமம் இத்யன்வயः குதः சமான பதோபாத்தத்வாத் பிரத்யயவாச்ச பல பாவனாயாம் ஸ்வர்க பாவ்யக ஆர்த்தி பாவனாயாம் ஸ்வர்க்கத்தை பாவியமாக கொண்ட ஆர்த்தி பாவனாவுல அதுதான் பல பாவனாயாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. சரியா? ஸ்வர்க்கத்தை பலனை பாவியமாக சாத்தியமாக கொண்டது எது? ஆர்த்தி பாவனா. அந்த பாவனாவுல சமான பதோபாத்தத்வாத் ஒரே பதத்தினால சொல்லப்பட்டதுனால யாகா சாதனமாக அன்வயிச்சிருக்கு. சமான பதோபாத்தத்வாத் பிரத்யயவாச்ச அதாவது ஆக்கியாத பிரத்யயவாச்ச பலபாவனாயாம் கரணத்வேன அன்விதஸ்ய யாகஸ்ய பவதா கதமுச்சதே சோம கர்மக பாவனாயாம் அன்வயः உச்சதே சஹா நோபபத்யதே. இப்ப இந்த ஒரு தோஷா புரிஞ்சதா? இதை நம்ம சுருக்கமா சொல்லதான் எப்படி சொல்லணும்? அந்யத்ர கரணத்வேன அன்விதஸ்ய யாகஸ்ய சோமகரணத்துவம் உச்சதே சேத் தோஷா. இது ஒரு தோஷா. சரி, இருக்கட்டும். யாகஸ்ய சோமார்த்தத்துவ ஆபாத்தாச்ச ரெண்டாவது தோஷா. எப்படின்னு பாருங்க. யாகா எதற்கு அங்கம்? வாஸ்தவிகத்துல கேக்குறதா? கேக்குறது புரியுறதா இல்லையா? என்னுடைய கேள்வி உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்லையா? சொர்க்கத்துக்கு அங்கம் தான். யாகஸ்ய ஸ்வர்காங்கத்துவம் அஸ்தி. வாஸ்தவிகத்துல சோமஹா யாகத்துக்கு அங்கமா அல்லது யாகா சோமத்துக்கு அங்கமா? யாகத்துக்கு அங்கம் இப்படித்தானே இருக்கு. ஆனா இப்போ யாகேன சோமம் பாவேத் அப்படிங்கிற எடுத்துக்கிற பட்சத்துல என்ன ஆயிடும் தெரியுமா? யாகஸ்ய சோமாங்கத்துவ ஆபத்தி. வாஸ்தவிகத்துல அப்படி கிடையாது. சோமஹாதான் யாகாங்கம் இல்லையா? இது புரிஞ்சுதா? இது ரெண்டாவது தோஷா. முதல் தோஷா என்னது? பலபாவனாயாம் கரணத்வேன அன்விதஸ்ய யாகஸ்ய சோமபாவனாயாம் அங்கத்வேன அன்வயः உச்சதே. இது ஏகः தோஷः. द्वितीयः दोषः यागस्य सोमांगत्व आपत्ति. वास्तविकतया यागस्य सोमांगत्वं नास्ति, सोमस्यैव यागांगत्वं वर्तते. इति द्वितीयः दोषः. तदानीं कश्चन वदति अस्तु यागस्य सोमांगत्वमेव अस्तु, तेन कः दोषः? क्रियायाः द्रव्यांगत्वं कुत्रापि नास्ति किम्? अस्ति. कुत्र अस्ति वक्तुं शक्यते वा? व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यस्ति किल. व्रीहीन् प्रोक्षतिங்கிற இடத்துல प्रोक्षणம் அப்படிங்கிற கிரியாவானது எதற்கு அங்கமா இருக்கு?
விரீஹிக்கு அங்கமா இருக்கு. விரீஹிக்கு அங்கமா இருக்கு. விரீஹி பிரதானமா இருக்கு. அதாவது திரவியத்துக்கு கிரியா அங்கமா இருக்கு. அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது? क्वचित् द्रव्यं प्रति क्रियायाः अङ्गत्वम् अस्ति. कुत्रापि क्रियायाः द्रव्यं प्रति अङ्गत्वं नास्ति इति न. तर्हि तथैव अत्रापि अस्तु. सोमं प्रति यागस्य अङ्गत्वमस्तु इष्टापत्तिः इति चेत् न च इष्टापत्तिः तथा न वक्तव्यं. कुतः? तथा उच्यते चेत् इत्युक्ते कथं? यागस्य द्रव्याङ्गत्वं सोमाङ्गत्वम् उच्यते चेत् अदृष्टद्वय आपत्तेः अदृष्टद्वय कल्पनापत्तिः गौरवम्. दृष्टविधया प्रयोजने सिद्धे अदृष्टकल्पनं न ध्यायः. अदृष्टकल्पना न அதிருஷ்டம் ந கல்பனீயம். இது புரிஞ்சதா உங்களுக்கு? இந்த சோமத்துக்கு யாகா அங்கம்னு சொல்லியாச்சுன்னா 2 அதிருஷ்டத்தை கல்பிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு தோஷா வந்துடும். அப்ப நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க வேண்டியிருக்கு? 2 அதிருஷ்டம் எப்படி கல்பிக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இல்லையா? அதுதான் மேற்கொண்டு சொல்லித்தரா. பாருங்க, சோமத்துக்கு யாகா அங்கம் இப்படின்னே வச்சுட்டு பேசுவோம். அங்கம்னா என்ன அர்த்தம்? ஜனகம் தான் அர்த்தம். ஜனகம்னா புரியல. அதாவது சோமத்துக்கு யாகா அங்கம்னா என்ன அர்த்தம்? யாகம் பண்ணினா சோமஹா உண்டாகணும். இதுதானே? ஆமாண்ணா, இந்த சொர்க்கம் மாதிரி உண்டாகணும். ஆனா எங்கேயாவது அப்படி உண்டாகிறதோ இல்லைண்ணா. யாகம் பண்ணினா அதுல இருந்து அக்னிகுண்டத்துல இருந்து சோமஹா உண்டாகிறதுன்னு எங்கேயாவது பார்த்தது உண்டா? அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. குத்ராபி ஏவம் நாஸ்தி யாக சமனந்தரம் சோம லதாயாக உற்பத்தி இது குத்ராபி நாஸ்தி. தர்ஹி கிம் வக்தவ்யம்? யாக கரணானந்தரம் அதிருஷ்டம் ஜாயதே தேன அதிருஷ்டேன காலாந்தரே சோமஹா உற்பத்தியதே இது வக்தவ்யம். இல்லையா? யாகத்தை பண்ணணும். யாகத்தை பண்ணினதுக்கு அப்புறம் ஒரு அதிருஷ்டம் யாகத்திலிருந்து உண்டாகும். எப்படி இந்த சொர்க்கஸ்தலத்துல நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமோ, யாகத்தை இன்னைக்கு பண்ணி முடிச்சிருக்கோம், உடனே சொர்க்கா கிடைக்கிறது இல்லை. அதுக்கு நம்ம என்ன கல்பிச்சோம்? இந்த யாகத்திலிருந்து ஒரு அதிருஷ்டம் உண்டாயிடுத்து. அந்த அதிருஷ்டம் அந்த எஜமானனுடைய கிரகபதியினுடைய ஆத்மாவில இருந்துருக்கு. அவன் அனுபவிக்க வேண்டியதான ஜென்மாந்தரியத்தையோ எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த அதிருஷ்டமானது சொர்க்கத்தை அவனுக்கு உண்டு பண்ணி கொடுக்கும். இப்படித்தானே கல்பிச்சிருக்கோம். ததைவிகள் அஸ்தி யாக சமனந்தரம் ஸ்வர்க பிராப்தி கஸ்யாபி நாஸ்தி லோகே. அதஹ தத் சாமஞ்சஸ்யம் கதம் சம்பாத்யதே இத்யுக்தே யாக அனுஷ்டானானந்தரம் யஜமானஸ்ய ஆத்மனி யாகஜன்யம் அதிருஷ்டம் சித்தியதி தத்ரைவ திஷ்டதி. கிரகபதினா ஜன்மாந்தரே கிருதம் பாபம் புண்ணியம் வா தஜ்ஜன்யம் பலம் சர்வம் அனுபூய ததனந்தரம் தத் அதிருஷ்டம் ஆத்மனி வித்யமானம் அதிருஷ்டம் ஸ்வர்க்கம் ஜனயதி इति अस्माभिः उच्यते. उपपत्तिः कल्प्यते. तद्वदेव अत्रापि किं वक्तव्यं? याग अनुष्ठानानन्तरम् अदृष्टं जायते. तद् अदृष्टं यजमानस्य आत्मनि तिष्ठति. किञ्चित् कालानन्तरं यदा किम् उचितः कालः भवति तदानीं सोमलता उत्पद्यते इति अदृष्टकल्पना वक्तव्या. அதிருஷ்டத்வய ஆபத்தி அப்படின்னு சொன்னோம். இப்ப ஒரு அதிருஷ்டம் எப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடுதா? நஹி யாகஸ்ய, பாருங்க இதை எப்படி சொல்றா அப்படின்னு கேட்டா, நஹி யாகஸ்ய சோமார்த்தத்துவம், அதாவது யாகா சோமத்துக்கு அங்கம் அப்படிங்கிறது திருஷ்டத்வாரேன சம்பவதி நஹி சம்பவதி.
திருஷ்ட விதையா தெரியுமான்னு? அதாவது யாகம் பண்ணா உடனே அங்கிருந்து சோமகா வந்துடுறதா? திருஷ்ட விதையா எப்படி நாம அவகரணம் பண்ணினால் துஷ விமோகா வருது இல்லையா? அத போல யாகத்தை பண்ணினா உடனே அதுல இருந்து என்ன வர்றதில்லை? சோமலதா வர்றதில்லை இல்லையா? அதுதான் சொல்றார், நஹி யாகஸ்ய சோமார்த்தத்துவம் திருஷ்டத்வாரேண சம்பவதி நஹி சம்பவதி நன்மயா. கிமிவ எதை போல? விரீஹிஷு அவகாத்தேன இவ. விரீஹிஷு அவஹனனே கிருதே ஜடிதி கிம் பவதி? துஷ விமோகா பவதி. மேல தோல்லாம் நீங்கிறது. அது திருஷ்ட விதையா நமக்கே தெரிகிறது. அத போல இந்த யாகத்தை பண்ணினால் உடனேயே சோமலதா வந்துடுறதா? வரதில்லை. தத்வத் நாஸ்தி. நஹி யாகஸ்ய சோமார்த்தத்துவம் திருஷ்டத்வாரேண சம்பவதி விரீஹிஷு அவகாத்தேன இவ யாகேன சோமே கஸ்யசித் திருஷ்டஸ்ய அஜனநாத். சோம விஷயத்துல எந்த ஒரு திருஷ்ட பிரயோஜனம் வரதில்லை. அத்தஹ தேன தாவத் தேன தஸ்மாத் காரணாத் கிம் கர்த்தவியமஸ்தி? சோமே கிஞ்சித் அதிருஷ்டம் ஜனனீயம். அதிருஷ்டம் அங்கீகர்த்தவியம். கிமிவ எதை போல? प्रोक्षणेन इव व्रीहिषु. व्रीहिषु प्रोक्षणं क्रियते. प्रोक्षणेन व्रीहिः वर्धते वा? किमपि दृष्टं किमपि प्रयोजनं जायते वा? किमपि नास्ति. तत्र किञ्चित् किम् अतिशयः भवति. शुद्धं किमपि जायते, पूतत्वं किमपि सम्पद्यते, तथा किमपि अङ्गीकर्तव्यं. तदपि अदृष्टविधया. तेन किं ज्ञायते? यागस्य सोमांगत्वं यागस्य उच्यते चेत् यागेन सोमे किञ्चित् दृष्टं फलं किमपि न जायते, अदृष्टमेव जायते. अत्र उदाहरणद्वयं प्रदर्शितम्. एकं व्रीहिषु अवघातेन इव इति. तत् किमर्थं प्रदर्शितं? दृष्टप्रयोजनार्थम्. अवहरणेन व्रीहिषु दृष्टं किञ्चित् प्रयोजनं जायते इत्यर्थः. इतोपि अन्यद् उदाहरणं प्रदर्शितं प्रोक्षणेन इव व्रीहिषु इति. इत्युक्ते अदृष्टकल्पनार्थम् इदम् उदाहरणं. प्रोक्षणेन व्रीहिषु किञ्चित् दृष्टं किमपि न जायते, अदृष्टमेव फलं जायते. प्रकृतस्थले यागस्य सोमार्थत्वे सोमाङ्गत्वे किम् उदाहरणं भवति? व्रीहिषु अवघातेन इव इति वा प्रोक्षणेन इव इति वा? किम् उदाहरणं? तदेव वक्तव्यं, प्रोक्षणेन इव. तर्हि एका अदृष्टकल्पना उक्ता. इदं किमर्थम् आरब्धं? यागेन सोमं भावयेति इति उक्ते यागस्य सोमाङ्गत्वं वक्तव्यम् इति दोषः गणितः. तदानीम् उक्तम् अस्तु यागस्य सोमाङ्गत्वमेव अस्तु इति उक्तं. तथा न वक्तुं शक्यते. यागस्य सोमाङ्गत्वे अदृष्टद्वयकल्पनापत्तिः स्यात् इति उक्तं. तत्र एकादृष्टकल्पना अधुना प्रतिपादिता. इतोपि द्वितीय अदृष्टकल्पना वक्तव्या. कथमिति पश्यतु. यागेन सोमं भावयेत् इत्युक्ते यागस्य सोमाङ्गत्वम् उक्तं. तर्हि सोमस्य कुत्र अन्वयः? यागेन सोमाङ्गत्वम्. यागेन सोमं भावयेत् इति तेन उक्तं, वाक्यार्थः उक्तः. तदानीं यागस्य सोमाङ्गत्वम् अस्ति इति अस्माभिः उक्तं. सोमस्य किम् अङ्गत्वं वक्तव्यम्? द्वितीया साधनमेव साध्यमेव वक्तुं शक्यते. सम्यक् भवता यदुच्यते तत् सम्यक् अस्ति. सोमम् इत्यत्र द्वितीयया साध्यत्वमेव उच्यते. अतः सोमस्य साध्यत्वमेव अत्र श्रूयते. परन्तु सोमस्य कस्यचित् अङ्गत्वं वक्तव्यं किल अवश्यम्. एवं யாகத்தினால சோமம் பாவயேத்து சொல்லியாச்சு. சரி, அப்படி சம்பாதிச்ச சோமத்தை வச்சு என்ன பண்ண போறோம்?
இப்போ உதாரணத்துக்கு விரீஹின் புரோக்ஷத்தின்னு சொல்றோம். புரோக்ஷணம் விரீஹ்யங்கம், புரோக்ஷணத்தினால விரீஹில ஏதோ ஒரு அதிருஷ்டம் உற்பத்தி ஆச்சுன்னு சொல்றோம். அதோட விட்டுடுறோமா, இல்ல அந்த விரீஹிக்கு வேற ஏதாவது ஒரு யாகத்துல, அதாவது அந்த கர்மாவில ஏதாவது ஒரு அங்கத்துவத்தை சொல்றோமா? புரோக்ஷம் பண்றதுனால ஒரு அபூர்வம் உண்டாருது அப்படின்னு சொல்றோம். உண்டாருதுன்னு சொல்றோம். இப்ப அபூர்வ விசிஷ்டமா விரீஹி இருக்கு, அதோட வேலை முடிஞ்சு போயிடுதா, விரீஹியோட வேலை முடிஞ்சு போயிடுதா, இல்ல இந்த விரீஹி வேற எங்க இன்னொன்னுக்கு அங்கம் ஆகுமா? அப்புறம் யாகத்துக்கு அங்கமா இருந்தது அவகாதம் சொல்றோம் இல்லையா? அதாவது நம்ம பொதுவாவே இந்த கான்செப்ட் நல்லா மனசை வச்சுக்கணும். நம்ம எதை சம்ஸ்காரம் பண்றோமோ, எந்த திரவியத்தை சம்ஸ்காரம் பண்றோமோ, அவசியம் அந்த திரவியத்துக்கு வேற இடத்துல விநியோகம் இருக்கு. ஸ்மார்த்தத்துலயும் அப்படித்தானே பண்றோம். ஹவிஸ்ல புரோக்ஷனம் பண்றோம், ஆஜ்ய சம்ஸ்காரம் பண்றோம், பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுறது இல்ல. அந்த ஆஜ்யத்தை வேற இன்னொரு இடத்துல விநியோகம் பண்றோம். அதாவது அந்த ஆஜ்யம் இன்னொன்னுத்துக்கு அங்கமாக ஆகிறது, அந்த ஹவிஸ் இன்னொன்னுத்துக்கு அங்கமாக ஆகிறது. அப்போ அதை வச்சுட்டு பார்த்தால், இப்போ யாகா சோமத்துக்கு அங்கம். இந்த யாகத்தினால சோமகா சம்ஸ்காரம் செய்யப்படுறதுன்னு வச்சுப்போமே, இந்த சோமம் எதுக்கு அங்கம்? அது கல்பிக்கணும், அது கல்பிக்கிறதுக்கு கௌரவம் ஆயிடும். அது கல்பிக்கிறோம் வச்சுப்போம். கல்பிச்சா என்ன கல்பிப்போம்? இந்த சோமகா சொர்க்கத்துக்கு அங்கம். ஏன்னா யாகத்தினுடைய ஸ்தானத்துல இப்ப சோமம் இருக்கு. யாகா சொர்க்கத்துக்கு அங்கம், வஸ்து ஸ்திதியில யாகா சொர்க்கத்துக்கு அங்கம். இப்ப நம்ம அதை என்ன பண்ணிட்டோம், மாத்திட்டு சோமத்துக்கு அங்கம்னு கொண்டு வந்துட்டோம். அப்போ சோமகா யாகஸ்தானத்துல உட்கார்ந்து இருக்கு. ஓகே, அப்ப சொர்க்கத்துக்கு அங்கமா இருக்கும் சோமம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்துடும். சரி, இந்த நிலைமை இருக்கட்டும், இப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ சோமஹா யாக ஸ்வர்கத்துக்கு அங்கம்னு சொன்னா, சோமஹா அதுனா யாகஸ்தானே வர்த்ததே இत्युक्ते ஸ்வர்க்கம் பிரதி யாக வஸ்து ஸ்திதௌ ஸ்வர்க்கம் பிரதி யாகः அங்கம், परन्तु अधुना तद् किं तत् त्यक्त्वा विपरीततया उक्तं यागस्य सोमाङ्गत्वम् उक्तं। तर्हि सोमः यागस्थाने वर्तते, तर्हि अयं सोमः स्वर्गं प्रति अङ्गम् इति एतावता जातम्। सोमेन स्वर्गः जायते इति वक्तव्यम्। सोमः स्वर्गं प्रति अङ्गम् इत्युक्ते तस्य अभिप्रायः कः? सोमः स्वर्गम् उत्पादयति, किं दृष्टविधया उत्पादयति वा अदृष्टविधया उत्पादयति वा? अदृष्टविधया वक्तुं शक्यते। तर्हि द्वितीया दृष्टकल्पना, यागस्य सोमाङ्गत्वे एका अदृष्टकल्पना, सोमस्य स्वर्गाङ्गत्वे एका अदृष्टकल्पना। तर्हि अदृष्टद्वयकल्पनापत्तिः आगता। परन्तु यदि वयं सोमस्य यागाङ्गत्वं यागस्य स्वर्गाङ्गत्वम् इति वस्तुस्थितिं वदामः, तर्हि तत्र अदृष्टकल्पना अस्ति न वा? एकादृष्टकल्पना अस्ति वा, निरदृष्टकल्पना अस्ति वा? एकादृष्टकल्पना एव अस्ति। एकादृष्टकल्पना एव अस्ति, सम्यक् उक्तं। कुत्र अस्ति तदपि? यागस्य स्वर्गे अङ्गत्वं वक्तुं। सम्यक् उक्तं। यागः स्वर्गं प्रति अङ्गम् इत्युक्ते तत्र दृष्टविधया न सम्भवति, अदृष्टविधया एव सम्भवति इति एका अदृष्टकल्पना अस्ति। सोमस्य यागाङ्गत्वे अदृष्टकल्पना एव नास्ति। सोमः द्रव्यं साक्षात् दृष्टविधया यागम् उपकरोति इति कृत्वा यागस्य स्वर्गाङ्गत्वपक्षे वस्तुस्थितौ सिद्धान्ते एकादृष्टकल्पना एव अस्ति। अधुना इत्युक्ते यागेन सोमं भावयेत् इत्यन्वये वक्तव्ये द्विरदृष्टकल्पना अस्ति। सम्यक् अस्ति? इदमेव उक्तं। द्वितीया अदृष्टकल्पना निरूपणं क्रियते। तथा इत्युक्ते यथा यागस्य सोमाङ्गत्वे अदृष्टकल्पनापत्तिः अस्ति, तथैव सोमस्य स्वर्गाङ्गत्वे द्वितीयादृष्टकल्पना अस्ति इति निरूप्यते। तथा यागस्य सोमार्थत्वे फलभावनायां सोमस्य करणत्वेन अन्वयः वक्तव्यः। यागस्य सोमाङ्गत्वे
यागः स्वर्गं प्रति अङ्गं नास्ति, सोमं प्रति अङ्गम् इति सोमार्थत्वे तत्वे फलभावनायां सोमस्य करणत्वेन अन्वयः वक्तव्यः। एवं तर्हि करणत्वेन अन्वयः इत्युक्ते कः अभिप्रायः? भावनायां करणत्वेन अन्वयः इत्युक्ते भावनायां यत् साध्यं तत् जनयति इत्यर्थः। एवं स्वर्गं जनयति इत्यर्थः। स्वर्गं जनयति इत्यर्थः। सम्यक् तदेव उच्यते। भावनाकरणत्वं च भावनाभाव्य निर्वर्तकत्वम् इत्युक्तम्। भावनाकरणत्वम् इत्युक्ते इदमेव, भावनाभाव्य निर्वर्तकत्वम्, उत्पादक। न च सोमः लता अदृष्टम् अन्तरेण इत्युक्ते अदृष्टं विना इत्यर्थः। सोमः अदृष्टम् अन्तरेण अदृष्टं विना फलं जनयितुं, स्वर्गरूप फलं जनयितुं न समर्थः न भवति। अवश्यम् अदृष्टद्वारा एव फलं जनयेत्। किञ्च कदाचित् इयं लता तथैव तिष्ठति भूमौ एव स्वर्ग उत्पादनपर्यन्तम् इति कल्पयामः चेत् तदपि न सम्भवति। कुतः? यागे ग्रहैर्जुहोति इति वाक्यं वर्तते। किं कुर्वन्ति? ग्रहैर्जुहोति इति वाक्यं। तेन वाक्येन किं विधीयते इत्युक्ते सोमलतायाः रसः भवति किल, तत् पात्रेषु स्थाप्यते, लघुपात्रेषु। अनन्तरं तत् अग्नौ प्रक्षिप्यते। तेन किं भवति? सोमलतायाः रसरूपायाः भस्मीभावः भवति। तेन किम् अवगम्यते? यागसमनन्तरमेव तस्य नाशः भवति इत्यवगम्यते। तर्हि नष्टा सा सोमलता कथं स्वर्गम् उत्पादयेत्? अवश्यम् अदृष्टद्वारा इति कल्पनीयम्। तदेव अत्र उच्यते। पश्यतु, ग्रहैर्जुहोति इति वाक्यविहित होमेन कस्य इत्युक्ते सोमस्य भस्मीभावात्। अतः अदृष्टद्वय आपातात् न यागस्य सोमार्थत्वम् इति कृत्वा न सोमे यागेन सोमं भावयेत् इत्यन्वयः सम्भवति। एवम् अन्वयः वक्तुं न शक्यते। तर्हि अस्मिन् प्रकारे कति दोषाः प्रदर्शिताः? नास्ति, दोषद्वयमेव प्रदर्शितं। कथमिति कथमिति अहं वदामि। तथैव भाति त्रयः वा अथवा चत्वारः दोषाः उक्ताः इति भाति, परन्तु नास्ति, दोषद्वयमेव। कथमिति अहं गणयामि। पश्यतु, यागेन सोमं भावयेत् इति पक्षस्वीकारे आर्थीभावनायां करणत्वेन अन्वितस्य यागस्य सोमाङ्गत्व आपत्तिः इति एकः दोषः। अनन्तरं सोमस्य वस्तुतः यागाङ्गत्वमस्ति, परन्तु अधुना किमुच्यते? यागस्य सोमाङ्गत्वमुच्यते इति द्वितीयः दोषः। इत्युक्ते यागस्य सोमाङ्गत्व आपत्तिः इति द्वितीयः दोषः। अस्मिन्नेव दोषे अवान्तरतया प्रश्नः आसीत्, तथैव अस्तु, यागस्य सोमाङ्गत्वमेव अस्तु इति पृष्टम्। तदानीम् उक्तं तथा वक्तुं न शक्यते, कुतः अदृष्टद्वयापत्तिः स्यात् इति निरूपितम्। तर्हि अत्र दोषद्वयमेव अस्ति। किमिति? भावनायां करणत्वेन अन्वितस्य यागस्य सोमकरणत्व निरूपणम् इति एकः दोषः। यागस्य सोमाङ्गत्व आपत्तिः इति एकः दोषः। तावदेव। मध्ये अदृष्टद्वयकल्पनं किमर्थम् आगतं?
यागस्य सोमाङ्गत्वमेव अस्तु इति केनचित् पृष्टं। तथा वक्तुं न शक्यते अदृष्टद्वयकल्पनापत्तिः इति उक्तं। तर्हि मुख्यदोषाः द्वौ एव दोषौ वर्तेते, मुख्यौ द्वौ दोषौ वर्तेते। इतः परं तर्हि एवं मास्तु सोमेन यागं भावयेत् इत्यन्वयः अस्तु। वैयधिकरण्येनैव, वैयधिकरण्येन इत्युक्ते विभिन्न विभक्तिकत्वेन सोमेन इति तृतीयान्तं पदं, यागम् इति द्वितीयान्तं पदम्। अधुना पूर्वोक्तदोषाः केऽपि न भवन्ति। कथमिति पश्यन्तु। सोमेन यागं भावयेत् इति उक्तं चेत् सोमस्य किमङ्गत्वं? यागाङ्गत्वम् आगतम्। यागाङ्गत्वं वस्तुस्थितौ अपि तथैव किल अस्ति, सिद्धान्तेऽपि एवम्। अतः किञ्च सोमेन इति वाक्ये एव तृतीया श्रूयते, तथैव रक्षितं, कारणत्वमपि लभ्यते, तथैव लभ्यते। तर्हि पूर्वोक्तदोषः नास्ति। यागस्य सोमाङ्गत्वम् इति नास्ति, सोमस्यैव यागाङ्गत्वम् इति अस्ति। अतः क्लेशो नास्ति। किञ्च अदृष्टद्वयकल्पनापि नास्ति। कुतः? सोमः यागाङ्गम् इत्युक्ते केन रूपेण? दृष्टद्वारा एव, न अदृष्टद्वारा। यागस्य तु स्वर्गाङ्गत्वम् अदृष्टद्वारा इति उभयवादि सम्मतम्। अतः क्लेशो अदृष्टद्वयापत्तिरपि नास्ति। सम्यक् अस्ति किल अस्मिन् पक्षे? तदेव उच्यते। अथ सोमेन यागं भावयेदित्यन्वयः अस्तु। तत्र एवम् अन्वये उक्ते, यद्यपि सोमस्य करणत्वेन यागार्थत्वात् यागनिर्वृत्तिरूप दृष्टमेव प्रयोजनं लभ्यते। पश्यन्तु, सोमस्य यागकरणत्वात् याग करणत्वम् इत्युक्ते उत्पादकत्वं, यागोत्पादकत्वं। सोमस्य यागोत्पादकत्वे दृष्टद्वारा तत्र किं यागोत्पादकत्वं दृष्टद्वारा एव सिद्ध्यति, न अदृष्टद्वारा। तदेव वदति सोमस्य करणत्वेन भावः एव वा? तथा नास्ति। यागे द्रव्यम् उपयुज्यते किल, यागो नाम त्यागः। त्यागं प्रति द्रव्यं साक्षादेव उपकरोति, दृष्टविधया एव उपकरोति इति कृत्वा। अतः सोमस्य करणत्वेन यागार्थत्वात् यागनिर्वृत्तिः दृष्टमेव प्रयोजनं तत्र वर्तते, प्रयोजनं लभ्यते इति न अदृष्टद्वयापत्तिकल्पना। एक पूर्वोक्तदोषः नास्ति। किञ्च नापि करणत्वेन उपस्थितस्य सोमस्य साध्यत्वेन अन्वय अनुपपत्तिः। पूर्वं यागेन सोमं भावयेत् इति यदा उक्तं तदा वस्तुतः सोमेन इति तृतीयान्तं पदमासीत्, परन्तु तेन कथम् अन्वयः उक्तः? यागेन सोमं भावयेत् इति साध्यत्वेन सोमस्य अन्वयः उक्तः। श्रूयमाणापेक्षया विपरीतम् उक्तम्। अधुना तु तथा नास्ति। यथा श्रूयते तथैव अस्ति। सोमस्य करणत्वं श्रूयते, अधुना सोमस्यापि करणत्वेनैव अन्वयः। तदेव वदति, नापि करणत्वेन उपस्थितस्य सोमस्य साध्यत्वान्वय अनुपपत्तिः तदपि नास्ति, करणत्वेनैव अन्वयः। अतः पूर्वोक्त दोषः नास्ति। यद्यपि पूर्वोक्त दोषाः न वर्तन्ते, तथापि अप्राप्तत्वात् भावनाकरणत्वेन अन्वितस्य यागस्य साध्यत्वेन अन्वय अनुपपत्तिः तदवस्था एव। अस्माभिः पूर्वमेव पठितम्, उत्पत्तिवाक्ये, कर्मणः उत्पत्तिवाक्ये धात्वर्थस्यैव करणत्वेन अन्वयः इति पठितम्। यत्र पूर्वमेव कर्मणः उत्पत्तिवाक्यं किञ्चित् नास्ति, इदमेव वाक्यम् उत्पत्तिवाक्यं, तर्हि तस्मिन् उत्पत्तिवाक्ये धात्वर्थस्यैव करणत्वेन अन्वयः, न तु अन्यस्य इति उक्तम्। तर्हि पश्यन्तु, इदमेव उत्पत्तिवाक्यमस्ति यागस्य। अस्मिन् वाक्ये धात्वर्थस्य केन रूपेण अन्वयः वक्तव्यः? करणत्वेन एव वक्तव्यः।
परन्तु भवता किम् उक्तं सोमेन यागं भावयेत् इति सोमस्य कर्णत्वम् उक्तं। सः एकः दोषः। किञ्च यागस्य केन रूपेण अन्वयः? इदानीं यागम् इति उक्ततया साध्यम् इति साध्यत्वेन अन्वयः कथं युज्यते? अप्राप्तस्य यागस्य साध्यत्वं नैव सिद्ध्यति। एवं प्रसिद्धस्यैव साध्यत्वं वक्तुं शक्यते, अप्रसिद्धस्य साध्यत्वं वक्तुं न शक्यते। स्वर्गः इति अज्ञातः पदार्थः चेत् कथम् अस्माकं तत्र रुचिः भवति? साध्यम् इत्युक्ते अवश्यं सः पुरुषार्थः भवेत्। पश्यन्तु, लड्डुकम् इति वदामः। लड्डुकम् आवश्यकं चेत् पठ इति वदामः। सः बालकः लड्डुकम् अवश्यं जानीयात्, तदानीमेव पठने तस्य प्रवृत्तिर्भवति। अन्यथा तस्य लड्डु इति अथवा चाक्लेट् किमपि भवतु, ज्ञातः पदार्थः ईप्सितश्च भवेत्, अन्यथा प्रवृत्ति न जायते। तर्हि अनेन किं ज्ञायते? साध्यम् इत्युक्ते अवश्यं ज्ञातपदार्थः एव भवेत्, सिद्धपदार्थः। किञ्च सिद्धपदार्थः इत्युक्ते एवं ज्ञातः प्रसिद्धपदार्थः इत्यर्थः। प्रसिद्धपदार्थः भवेत्, ईप्सितः च भवेत् सः। एतावता अस्य यागस्य उत्पत्तिरेव न जाता चेत् कथं यागस्य अत्र साध्यत्वं सम्भवति? तर्हि अवश्यम् अस्मिन् वाक्ये कस्य करणत्वं वक्तव्यं? फलभावना, आर्थिभावनाया यागस्य यागस्यैव किं करणत्वेन अन्वयः। तर्हि सोमस्य करणत्वं न सिद्ध्यति। सोमस्य करणत्वं न सिद्ध्यति। भवता सोमेन यागं भावयेत् इति यागस्य साध्यत्वम् उक्तं, तदपि न सम्भवति। यद्यपि पूर्वोक्तदोषाः न भवन्ति, कदा सोमेन यागं भावयेत् इति उक्ते कथमपि पूर्वोक्तदोषाः न भवन्ति, अथापि अन्यः दोषः भवति। कः दोषः भवति? यागस्य साध्यत्वेन अन्वयः इति दोषः। तदेव उच्यते तथापि अप्राप्तत्वात् भावनाकरणत्वेन अन्वितस्य यागस्य साध्यत्वेन अन्वय आपत्तिः तदवस्था एव इति दोषः उच्यते। इदं तु कदा? वैयधिकरण्येन अन्वये उक्ते एवं दोषः भवति इति। एतादृश दोषवारणार्थम्, एतादृश दोष इत्युक्ते लक्षणा अस्वीकारे एतादृश दोषाः भवन्ति। सामानाधिकरण्येन वैयधिकरण्येन अन्वये एतादृश दोषाः भवन्ति। अतः एतादृश दोषवारणार्थं पूर्वपक्षिणा किम् उच्यते? यागस्य साध्यत्वेन अन्वयः, साधनत्वेन अन्वयः इत्येवं रूपेण मास्तु। केवलं केवलस्य यागस्य सम्बन्धं किम् अविगणय्य केवलं धात्वर्थस्य भावनायाम् अन्वयः अस्तु इति अग्रिमः पक्षः। इदं तु वयम् अग्रे पश्यामः। अत्र समापयामः। प्रश्नः, इदं गृहेर्जुहोति इति अवान्तरदोषः वा? अवान्तरदोषः इति नास्ति। दोषद्वयम् उक्तं, तत्र अवान्तरे इदम् आगतं वा? गृहेर्जुहोति इति वा? अहं वदामि, द्वितीय अदृष्टकल्पना वक्तव्या किल? एवं उच्यते इत्युक्ते सोमलतया स्वर्गः न जायते। कदाचित् अस्माकं संशयः स्यात्, एषा लता क्वचित् सुरक्षिता इति केवलं कल्पना एव, सुरक्षिता इति चिन्तयतु। यदा स्वर्गः अस्य उत्पद्यते तदानीम् एषापि लता तस्य हस्ते अस्ति इति चिन्तयतु। तदानीं दृष्टविधिया उपकरोति इति वक्तुं शक्यते किल? कल्पना एव सर्वं। परन्तु तत्र अवसरः एव नास्ति। कुतः? लतायाः भस्मीभावः एव सम्पद्यते। कथमपि सा न तिष्ठति इत्यर्थः। तर्हि नष्टः सोमः कथं स्वर्गं दृष्टविधिया उत्पादयति? एवम् अदृष्टतया उत्पादयितुं शक्यः इति वक्तुम् आगतः वा?
वक्तुमेव इदं वाक्यम् अत्र उल्लिखितं ग्रन्थकारे। ओके। किञ्च अयम् अहं रेकार्ड् स्थापयामि। मङ्गलश्लोकः। यत्कृपालेशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तमहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सलम् अनन्तगुणसम्पन्नम् अनन्तभजनप्रियम् अनन्तरूपिणं वन्दे गुरुमानन्दरूपिणम्।